Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6. Subject Social Studies, Chapter 1 from Geography, Major Land Features, Reading and Explanation Part 1, and I am Tabinda Humayun. Students, this is your geography book for class 6th. Students, now open page number 57. This is our first chapter from geography section. The name of the chapter is Major Land Features, यानी ज़मीन की अहम खुसूसियात. Students, now turn to page number 58. We will start with the introduction. The upper solid layer of the earth on which humans live is called the crust. ज़मीन की वो ऊपर वाली तह या ऊपर वाली सतह जहां इंसान रहते हैं उस सतह को हम crust बोलते हैं. Different types of movements are produced inside the crust. इस crust के नीचे मुख्तलिफ किस्म की हरकत पैदा होती हैं. Movements means हरकत, produced means पैदा होना. Some of these movements are sudden like earthquakes which we can feel. ये हरकत, इनमें से कुछ हरकत जो होती हैं बहुत अचानक होती हैं. Sudden means अचानक, जैसे कि earthquakes. Earthquakes means जलजला, जो कि हम महसूस कर सकते हैं easily. Some are very slow which cannot be felt. और कुछ movements इतनी slow होती हैं जो कि हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते. In some parts of the world the earth crust is emerging while in other parts it is submerging. ज़मीन की या दुनिया की कुछ जगहों पर ये ज़मीन इमर्ज हो रही होती है यानी उभर कर सामने आ रही होती है, और कुछ हिस्सों में ये ज़मीन सबमर्ज हो रही होती है यानी नीचे छुप रही होती है. These movements are very slow and gradual. ये हरकत बहुत स्लो और आहिस्तगी से होती हैं, but continued for a long time. लेकिन ये ज़्यादा लंबे अरसे तक होती रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं. And bring important changes in the earth crust. और ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत अहम तब्दीलियां लेकर आती हैं. Due to these movements, folds and faults are produced. इन्हीं हरकत की वजह से ज़मीन के क्रस्ट के नीचे कुछ folds और कुछ faults पैदा होते हैं. Folds means तह बन जाना and faults means नुक्स पैदा हो जाना. In the earth crust which result into major land features. और इसके नतीजे में ज़मीन की कुछ नुमाया खुसूसियात सामने आती हैं. For example, mountains यानी पहाड़, valleys यानी वादियाँ, and plateaus यानी सतह मुर्तफ़ा, etc. Students, let's study these major land features of the earth. Number 1 is mountains. Mountains means pahar. Those land forms which have great heights from its surrounding land and have steep slopes are called mountains. वो जगह जो कि अपनी surrounding से ऊंची हों, उनकी ऊंची नोकीली या आप कह रहे हैं चोटीदार ढलवान हो, ऐसी जगह को हम माउंटेन्स बोलते हैं. दे आर द हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. ये ज़मीन के ऊपर सबसे ऊंची पाई जाने वाली ज़मीन है. Students, let's study the features of the earth. The first one is mountains. Now the question is, what are mountains? Mountains means pahar. Those land forms which have great heights from its surrounding and land have steep slopes are called mountains. Students, let's study the major features of the land. Number 1 is mountains. Mountains means pahar. The question is, what are mountains? Those landforms which have great heights from its surrounding land and have steep slopes are called mountains. वो जगह जो कि अपने इर्द गिर्द की ज़मीन से ऊंचाई पर पाई जाए और जो जिसकी स्टीप स्लोप्स यानी बुलंद चोटियां हों, ऐसी जगह को हम माउंटेन्स बोलते हैं. दे आर द हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. ये ज़मीन की सरफेस पर पाई जाने वाली बुलंद तरीन ज़मीन होती है. Students, now turn to page number 59. Here we have the types of mountains. Following are the main types of mountains according to their mode of formation. बनावट के लिहाज से mountains की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं. The first one is folded mountains. Folded mountains are formed when horizontal forces act towards a common point from opposite direction inside the earth. ज़मीन की सतह के नीचे जब दो कुव्वतें या दो तरफा कुव्वतें एक
सेंटर पॉइंट की तरफ, एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ एक दूसरे को खींचती हैं, तो उसकी वजह से जब ये एक दूसरे में के साथ जुड़ने लगती हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के फोल्ड्स या इनमें मुख्तलिफ किस्म की तहें पैदा होने लगती हैं। दीज फोर्सेस प्रोड्यूस बेंड्स और फोल्ड्स इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ। यही ताकतें जो है वो ज़मीन के नीचे जो लेयर्स हैं इसमें फोल्ड्स और बेंड्स पैदा करते हैं। These upwards bends or folds also raise the surface of the earth, which are called fold mountains. इन कुवतों की वजह से ज़मीन जो एक दूसरे में की तरफ खिंच रही होती है, उसमें ज़मीन की लेयर्स में मुख्तलिफ जो बेंड्स और फोल्ड्स पैदा होते हैं वो ऊपर की तरफ उभर कर सामने आ जाते हैं। ये जो ज़मीन की सतह उभरती है ये हमारे लिए फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट करती हैं। फोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड इन मैनी कंट्रीज। फोल्ड माउंटेन्स मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। इन पाकिस्तान कराकोरम, हिंदू कुश एंड हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। पाकिस्तान में कराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस है वो फोल्डेड माउंटेन्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। The second type of mountain is block mountains. These mountains are formed by the faults in the earth crust. ज़मीन की क्रस्ट में जब कोई faults पैदा होते हैं तो तब इस किस्म के mountains सामने आते हैं. If two sides of a fault go down due to earth movement and the middle part remain intact, a mountain is formed which is called block mountain. ज़मीन में जब कोई fault पैदा होता है और ज़मीन की surface के दो parts जो हैं वो ज़मीन में धंस जाते हैं और सेंटर पार्ट या मिडिल पार्ट रिमेन रह जाता है, बाकी अपनी जगह पर बरकरार रहता है, इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से जो पहाड़ क्रिएट होता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. Here we have a picture of block mountain on page number 60. So turn to page number 60. Students, here we have an image of formation of block mountains. हमारे पास इस पिक्चर में क्लियरली बताया गया है कि ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह क्रिएट होते हैं. ये हमारे पास अर्थ की सरफेस थी. ये पहले एक फ्लैट सरफेस थी, बिल्कुल हमवार थी. अर्थ की क्रस्ट में जो फॉल्ट्स पैदा हुए उसकी वजह से ये टू साइड्स से ज़मीन में धंस गई, ये दो साइड्स, और जो सेंटर पार्ट था, जो मिडिल पार्ट था, वो हमारे पास रिमेन इंटैक्ट रह गया, बाकी रह गया. इसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई, इस फॉर्मेशन को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. हेयर वी हैव अ नेचुरल पिक्चर ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. स्टूडेंट्स, द थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स, यानी आतिश फिशां पहाड़, यानी वो पहाड़ जिनके अंदर लावा पाया जाए, ऐसे पहाड़ों को हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं. ड्यूरिंग वॉल्केनिज्म, व्हेन लावा कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कूल्स एंड सॉलिडिफाई ड्यू टू लो टेम्परेचर. जब ये लावा बर्स्ट करता है, ये माउंटेन बर्स्ट करके बाहर की तरफ आ जाता है, तो बाहर का टेम्परेचर क्योंकि कम होता है एज कम्पेयर टू द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, इस वजह से ये बाहर निकलकर ये लावा ठंडा पड़ जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट रेजेस इनटू वॉल्केनिक माउंटेन्स, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बाहर जमा होता रहता है और एक माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है. हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ फुजियामा volcanic mountain in Japan. Students, now turn to page number 61. The second major land feature of the earth is plateau. What is a plateau? यानी सतह मुर्तफा, यानी बुलंद हमवार ज़मीन या सतह. Plateaus are broad and plain upland area rises to a certain height from its surrounding area. एक बुलंद हमवार मकाम जो कि एक ख़ास हद तक ऊंचाई पर हो, ऐसी जगह को हम प्लेटू बोलते हैं. It has steep slope on one side and gentle slope at the others. और इसकी एक साइड पर थोड़ी ऊंची सी ढलवान हो और दूसरी साइड पर कम ऊंचाई पर आपके पास ढलवान हो, ऐसी जगह को हम प्लेटू बोलते हैं. इन पाकिस्तान, पोटवार एंड बलूचिस्तान प्लेटूज आर फेमस. पाकिस्तान में पोटवार और बलूचिस्तान के जो सतह मुर्तफा है वो बहुत मशहूर हैं.
Earth movements, volcanism and other exogenic forces are responsible for the formation of plateaus. अच्छा, ज़मीन के अंदर जो हरकत होती हैं, इसके अलावा जो वॉल्केनिज्म होता है, आतिशफशां पहाड़ जो होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी वो ताकतवर फोर्सेस होती हैं या गैसेस होती हैं जो कि तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, वो ही इन प्लेटोज को बनाने के वजह बनती हैं. Following are the main types of plateaus. Students, now turn to page number 61. The other major land feature is plateau. Plateau means सतह मुर्तफा या वो जगह जो कि बुलंद हो और हमवार हो. Plateaus are broad and plain upland which rises to a certain height from its surrounding area. अपने इर्द गिर्द के एरिया से एक ऐसी जगह जो कि थोड़ी बुलंदी पर हो लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल प्लेन और ब्रॉड हो, वसी हो, ऐसी जगह को हम प्लेटू बोलते हैं. इट हैज स्टीप स्लोप एट वन साइड एंड अ जेंटल स्लोप एट द अदर्स. इसके एक साइड पर स्टीप स्लोप होता है और दूसरी साइड पर जेंटल स्लोप होता है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी हैव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. हमने पहले ये कहा कि माउंटेन उसे कहते हैं जो कि सतह ज़मीन से ऊंचाई पर पाई जाए, ऐसी जगह को हम माउंटेन बोलते हैं. लेकिन माउंटेन और प्लेटूज में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि माउंटेन्स जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊपर से वो स्टीप स्लोप होते हैं, ऊपर उनकी चोटी होती है, जबकि जो प्लेटूज होते हैं इसकी स्लोप्स तो होते हैं लेकिन ये बहुत स्टीप स्लोप्स नहीं होते, बहुत तिरछे नहीं होते. और ये इनकी जो दूसरी इसमें जो मेजर चेंज है वो ये है कि जब ये ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऊंचाई से ये ऊपर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आपको प्लेन या मैदानी इलाका यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा, इसलिए इसको बुलंद हमवार मकाम भी कहा जाता है. इन पाकिस्तान पोटवार एंड बलोचिस्तान प्लेटूज आर फेमस. पाकिस्तान में पोटवार एंड बलोचिस्तान, जो बलोचिस्तान के प्लेटूज हैं जो सतह मुर्तफा हैं, वो बहुत मशहूर हैं. Earth movements, volcanism and other exogenic forces are responsible for the formation of plateaus. ज़मीन के अंदर होने वाली जो मुख्तलिफ हरकत हैं, इसके अलावा जितने भी वॉल्केनिज़म्स हैं, जितने भी आतिशफशां पहाड़ हैं, और इसके अलावा जितनी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल गैसेस पाई जाती हैं. जब वो एक फोर्स से, एक ताकत से बाहर निकलती हैं तो इसकी वजह से ज़मीन की लेयर्स में या प्लेट्स में मूवमेंट पैदा होती है, और यही सारी वजह जो है वो मिलकर प्लेटूज को क्रिएट करती हैं. फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लेटूज. The first type of plateau is InterMountain Plateau. In several high mountain ranges of the world, uneven land is formed which is neither mountain nor plains and are more like plateaus. दुनिया की मुख्तलिफ माउंटेन रेंजेस के दरमियान में कुछ ऐसी जगह पाई जाती हैं, कुछ ऐसे मैदान से पाए जाते हैं जो कि पहाड़ जितने बुलंद भी नहीं होते और मैदानों के जैसे बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होते, और ये तकरीबन प्लेटूज के जैसे दिखते हैं. दे आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द माउंटेन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेटूज. क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान में ये ज़मीन पाई जाती है, इस वजह से इनको इंटर माउंटेन प्लेटूज बोला जाता है. In the south of Skardu in Karakoram range, the area of Deosai is an important example of intermountain plateau. सिकरदू के जनूब में जो कराकोरम रेंज है, वहाँ के एक इलाके द्योसाई को इंटर माउंटेन रेंज की एक अहम एग्जाम्पल पाकिस्तान की माना जाता है. The second type of plateau is Piedmont Plateau. These are formed at the foot of mountains. It is situated in such a way that it has mountains on one side and sea or plain on the other. अच्छा जी, सेकेंड टाइप जो होती है वो पिडमॉन्ट प्लेटूज कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये किस तरह के होते हैं? दिस इज़ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये हमारे पास अर्थ की सर्फेस है. इसकी एक साइड पर हमारे पास माउंटेन होता है, दरमियान में हमारे पास हाई रेज्ड एरिया इज़ नोन एज माउंटेन. तो सेंटर में हमारे पास एक प्लेटू की फॉर्म होती है, और इसकी दूसरे एंड पर, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, और इसके दूसरे एंड पे हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी, सी, ओशन पाया जाएगा, या फिर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई प्लेन या मैदानी इलाका हो. ऐसी जगह को हम
हम पिडमॉन्ट प्लेटूज बोलते हैं। अच्छा जी, अब दीज आर फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको देखें तो ये जो प्लेटू है ये ऑलमोस्ट इस माउंटेन की फुट साइड पर पाया जाता है, ये माउंटेन के बॉटम में पाया जाता है। एक्चुअली पिडमाउंट का मतलब ही यही है, फुट ऑफ द हिल। तो ये जो जिस जगह पे पाया जाता है ये ऑलमोस्ट माउंटेन का फुट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि दीज आर फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। तो ऐसी जगह जिसकी एक साइड पर हमारे पास माउंटेन और दूसरी साइड पे हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी, सी और ओशन हो, और वी हैव एनी प्लेन एट अनदर साइड, these type of places are known as Piedmont Plateaus. It is small in area. For example, Potwar Plateau, which is situated in between Margala Hills in north and plain area of Punjab in south. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पोटवार प्लेटू है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू है, वो किस तरह से फॉर्म हुआ है कि उसकी एक साइड पे यानी नॉर्थ की साइड पे हमारे पास मार्गला हिल्स है, सेंटर में हमारे पास पोटवार प्लेटू है, और उसके साउथ के जो एंड आता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पंजाब के हमारे पास प्लेन्स आते हैं। सो द एरिया विच हैज वन माउंटेन एट वन साइड एंड एनी प्लेन और वाटर बॉडी ऑन द अदर साइड is known as Piedmont Plateau. We have the third type of plateau on page number 62. The third type of plateau is Continental Plateau. As a result of earth movement, a vast area raise upward and have the characteristics like plateau. Characteristics means हुसूसियात, कहते हैं एक वसी इलाका जो कि अर्थ मूवमेंट्स की वजह से उभर कर ऊंचा हो जाए या उभरा हुआ नज़र आने लगे और उसकी खुसूसियात जो है वो प्लेटूज की जैसी हों, तो वो जगह कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटू है, बुलंद हमवार मकाम, अ रेज्ड लैंड फॉर्म इज नोन एज प्लेटू। अच्छा जी, the other characteristic is it has more height from sea level. इसकी जो हाइट होती है वो सी लेवल से ऊंची होती है। एंड सराउंडिंग प्लेन एरिया, और इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द तमाम प्लेन एरिया होगा, मतलब यहाँ पर आपको कोई माउंटेन रेंजेस नज़र नहीं आएंगी, मोस्टली आपको तमाम प्लेन एरिया नज़र आएगा। एंड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, और ये बड़ी वसी जगह पर फैला हुआ होगा, ऐसी जगह को हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहते हैं। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, इट इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेटू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स भी हमारे पास एक मेजर लैंड फीचर पाया जाता है। पहले हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जो ऊंचाई पर हो, जिनकी स्टीप स्लोप हो और नीचे से ब्रॉड हो, ऐसी जगह को हम, ऐसी लैंड फॉर्म को हम माउंटेन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा प्लेटूज के बारे में, ऐसी जगह जो कि ऊंचाई पर हो और रेज्ड लैंड हो, ऊपर से फ्लैट हो, ऐसी जगह को हम प्लेटूज बोलते हैं। थर्ड जो हमारे पास लैंड फॉर्म आती है वो आती है प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? ये मैदानी इलाके होते हैं, जो मैदान होते हैं उनको हम प्लेन्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लेन्स बनते कैसे हैं? तो प्लेन्स इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर हमारे पास स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल जब होती है, फिर उसके बाद सीज़न जब चेंज होता है, तो ये स्नो या ये ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो यहाँ से पानी नीचे ज़मीन की तरफ आता है, लैंड की तरफ आता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो ये पानी जब फ्लो करके नीचे की तरफ आता है तो ये अपने साथ डिफरेंट मिनरल्स वगैरह लेकर आता है, और इनको यहाँ जब ऊपर से उतरता है तो ये बहुत स्पीड में होता है, और फिर जैसे जैसे ये लैंड या प्लेन एरियाज तक पहुँचता रहता है तो इसकी स्पीड स्लो होती जाती है। अब जब ये ऊपर से गिरता है पानी तो ये अपने साथ मुख्तलिफ मिनरल्स लेकर नीचे आता है, और ये पानी जब प्लेन एरियाज तक पहुंचता है तो ये उन प्लेन एरियाज पर उन मिनरल्स को डिपॉजिट करता जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर ये वो मिनरल्स छोड़कर आगे बहता जाता है। यही वजह है कि हमारे पास जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं वो मोस्टली फर्टाइल लैंड होती है, ज़रखेज़ होते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की
की तरफ। प्लेन्स क्या होते हैं? एन इवन सरफेस विच हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 500 फीट इज कॉल्ड प्लेन। एक ऐसी हमवार, एक ऐसी प्लेन जगह जिसकी ऊंचाई 500 फीट तक हो, ऐसी जगह को हम प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन्स हैव डिफरेंट हाइट्स अबव सी लेवल एंड सम आर इवन बिलो सी लेवल। कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कि सी लेवल से थोड़ा हाइट पर होते हैं, और कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जो सी लेवल से थोड़ा बिलो लेवल पे होते हैं, नीचे लेवल पर होते हैं। प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। बनावट की लिहाज से हमारे पास जो प्लेन्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लेन्स। Plains are divided into further three types. These are depositional plains, erosional plains, and coastal plains. Depositional plains are further divided into many types. These are river depositional plains, glacial depositional plains, wind depositional plains, lava depositional plains, and lacustrine plains. Erosional plains are divided into two types. These are peneplains and karst plains. We will discuss in detail all these types of plains. This is the end of chapter number 1, Reading and Explanation Part 1. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.